Very good evening, guys. We are here to have a comprehensive lecture on NumPy, and it is brought to you by Data Readers EduTech. And as we have been serving you since a few months now, it's our privilege to bring up this free course. बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग मतलब बहुत लोगों को पाइथन पढ़ते वक्त क्या होता है कि नमपाई में ना बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत दिक्कत आता है. तो दिस इज अ स्मॉल स्निपेट. वी विल बी टीचिंग यू द होल नमपाई on our YouTube channel, and I will request everyone कि after watching the video, please like, share and subscribe to our channel. And I would also request everybody to share it more and more with your friends, not for the purpose of advertisement but for the purpose of helping them to have a strong grip on NumPy. So let's begin with the topic, and one by one we will be covering each and every aspect. And so let's start with it. So, basically speaking, what is a NumPy? What is a NumPy? Basically speaking, what is a NumPy? As you move on, uh, so let's make the thing and the term clear first. ये NumPy होता क्या है? ठीक है? So it is nothing. इसका अगर फुल फॉर्म निकाले, तो हम लोग देखेंगे कि NumPy is nothing but simply इसका फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल. इसका फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल एंड पाई का फुल फॉर्म है, एज यू ऑल नो, इट्स पाइथन. ठीक है, इट्स नथिंग एल्स बट पाइथन. So the first thing which comes to our mind is what we can do with this numerical Python library. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लो कि पाइथन हमें ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है जिसके मदद से हम लोग कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एंड नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिफरेंट डोमेन्स में मतलब डील कर पाते हैं उनसे. ठीक है, सो NumPy is basically a library, ठीक है, used to work actually with nothing but arrays. Used to work with nothing but arrays, ठीक है, and also help us to function in domain of linear algebra. ठीक है, linear algebra में हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है. फिर it also helps us in performing Fourier transform. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हम लोगों के मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है Fourier transform. Also it is also a important topic in communication engineering वगैरह वगैरह. So in that part, as you know, there is a topic called Fourier transform. So it also helps us in performing various kind of Fourier transform functions. ठीक है, then it is also helpful in matrices. ठीक है, NumPy के पास एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है mat. So with that sub module you can perform various type of operation on matrices. ठीक है, so this was the basic scenario. और one more important thing, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि NumPy is only written in Python. This is only written, इसके नाम में Python है पर इसका मतलब ये नहीं कि it can only be written in Python. ठीक है, this is a misconception. Just remember, NumPy is basically written, मतलब basically नहीं, partially written in Python. एंड जहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल फंक्शनैलिटी एंड कैलकुलेशंस की बात आती है, वी राइट दैट पार्ट इन सी एंड सी प्लस प्लस. ठीक है, तो इन सी एंड सी प्लस प्लस. ठीक है, so remember Python NumPy is written not only in Python but also in C and C++. ठीक है, so this is the basic scenario of NumPy. So I would suggest
और किसी को अगर numpy इंस्टॉल करना हो तो अपना पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट खोलना एंड जस्ट राइट pip install numpy and it will help you install the whole numpy modules. पर अगर तुम्हें इतने झमेले में नहीं पड़ना है देन सिंपली डाउनलोड एनाकोंडा और स्पाइडर. ठीक है, ये क्या होता है कि प्री मतलब मॉड्यूल प्री लोडेड होता है. ठीक है, इन सब आईडीज में. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी विल बी रीडिंग इज why we should use NumPy. The biggest question anywhere, anything you do is why. Why we should use it. ठीक है यार, Python में ना basically what we do with NumPy, we deal with arrays. ठीक है, जब हमारे पास already lists है, list कलेक्टिव डेटा सेट है, तो हम लोग क्यों यूज करेंगे. ठीक है, हम लोग NumPy को क्यों यूज करेंगे. रीजन इज कि लिस्ट, अगर मैं लिस्ट का स्पीड x मान लूं टू परफॉर्म अ गिवन ऑपरेशन ऑन एन एरे या ग्रुप और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, देन द स्पीड ऑफ the numpy module to do the same operation will be nothing but 50x, 50 गुना ऑन एन एवरेज. ठीक है, 50 गुना ज्यादा तेज काम कर पाता है किससे, लिस्ट से. ठीक है, व्हाई इज इट सो, बिकॉज लिस्ट जो होता है ना, लिस्ट का जो डेटा होता है इट इज स्टोर्ड इन अ नॉन कंटिन्यूअस वे इन द मेमोरी. ठीक है, मेमोरी में कहीं भी मतलब एक डेटा सपोज समवेयर एल्स स्टोर है और दूसरा डेटा समवेयर एल्स स्टोर है. ठीक है, तो फिर क्या होता है कि सारे डेटास को एक साथ एक्सेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. बट इन केस ऑफ NumPy क्या होता है कि सारे जो डेटास है, ठीक है, all the data is stored in the memory at a single place in a continuous manner. एक के बाद एक easily हम लोग fetch कर पाएंगे. So basically what I want to say is it we prefer list. मतलब we prefer NumPy over lists. ठीक है, over lists because we can do our work more quickly and efficiently, almost 50 times faster using NumPy rather than using list. ठीक है, so this is the reason. And another reason to use NumPy basically is it has got an array object. We can create the array object in NumPy using this keyword, that is nd array. ठीक है, which provides after using this array object, basically it creates array object, and after creating this array object with the help of this keyword we basically get a lot of supporting functions. ठीक है, that are working, that will help us work easily. ठीक है, in huge big statistical and mathematical calculations. ठीक है, so this is the usefulness of nd array, and by using nd array one can do data science more efficiently. ठीक है, so nd array is of great use for data science. ठीक है, डेटा साइंस में बहुत ज्यादा हमें मदद मिलती है when we use NumPy, because using it we can create an array object, nd array, and that is really helpful in various kind of works related to data science. ठीक है, तो कभी और पढ़ेंगे what is data science, that is not our concern right now. ठीक है, बस जान के रखो कि it is the study of the data which is calculated, analysis, मतलब समझ रहे हो ना. So basically this is data science. ठीक है, so this is the reason why we basically use NumPy. All right, next. So this we will be learning now with the help of coding in Spider. ठीक है, first how to use. ठीक है, so for using we will use this keyword, we will use this header line import. ठीक है, import NumPy, and through this we can easily fetch the features which have been installed in this module of Python
लाइब्रेरी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काम करेंगे। वी विल बी बेसिकली so let's go to Spider. And as you can see, we'll be coding it right here that import. As I said you, we will just write numpy and we will be using an alias. ठीक है? We'll be using an alias. मीन्स बार बार प्रोग्राम में numpy numpy नहीं लिखेंगे, उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बेसिकली हम लोग थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करेंगे और जिस नाम से मैं उसे बुलाऊंगा मतलब निक नेम दे दूंगा numpy को, उसको हम लोग कैसे निक नेम देते हैं बाय यूजिंग अ कीवर्ड एज। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अलायस। अलायस क्रिएट करते हैं numpy का। लेट्स नेम इट बेसिकली एनपी यूज होता है स्टैंडर्ड वे में, मतलब कोई भी बेसिकली हर जगह देखोगे इंपोर्ट numpy एज एनपी, तो हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड alias नेम ही यूज करेंगे। सो द as कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन alias, ठीक है, ऑफ एनी गिवन मॉड्यूल और लाइब्रेरी। सो दिस इज how we created, this is how actually we imported, ठीक है, imported the module numpy. Next we'll be creating an array using numpy, but now we will be using np as we nicknamed it, ठीक है, np dot array, ठीक है, np dot array and 1 comma 2 comma 3 comma 4, ठीक है, and we'll be just printing the array. So as soon as we do this, ठीक है, as soon as we do this, let's run the program. And as you can see in the right hand most corner where I have selected the output, see here, as you can see, it has created an array, but not by the use of any collective data set, but with the use of numpy. Okay, so this is the basic concept. This is how you create a 1D array using sorry, I think the spider stopped working, so let's reload it once again. So basically, as I said you, that is how you can actually create a 1D array using numpy. ठीक है, just a second, I'll be reloading the spider IDE. ठीक है, बहुत सारे मतलब चीजें एक साथ चल रहा है मेरे सिस्टम में, इसीलिए शायद it stopped working. It's loading, it's loading. So basically this was the thing how to create a array. Next thing which we are going to do is, just a moment, it's loading. So yeah, let me enlarge. Yeah, it got enlarged. So this is how you create. Next thing which we will be seeing is how to actually please go to this page and download it for information, check for updates at the startup. Okay, so you just see, next thing which we will be doing is, what we will be doing is we will be creating the numpy object, ठीक है, by using the numpy array. तो let's do it जैसा कि हम लोग तब पढ़े थे, we'll be creating nothing but object, ठीक है। So let's see, we'll be checking, ठीक है, कि basically array object बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। np dot array 1 2 3 4 1 2 3 4 actually, and now we'll be just print, ठीक है, print type arr. Basically what we are trying to do is I will be showing you that inside the class numpy object will be created which will be the nothing but nd array, ठीक है। देखते हैं आउटपुट में ये शो होना चाहिए। I think it had again stopped working, actually problem दे रहा है। चलो देखते हैं, फिर से करेंगे लोड। So basically when we run that code,
the output which we will be getting is uh, let's reload. I'll show you directly. Sorry for the interruption. बहुत अच्छा मतलब ठीक है. Recover from autosave, restore. Yeah, so here it is. So now let's see. I hope कि आगे ये बंद ना हो. ठीक है. Let's hope. So what we did, we created an array arr np dot array इधर पे 1 2 3 4. चलो, not bad. And next what we did is we basically uh, print print type arr. ठीक है, चलो अब रन करते हैं इसको. Here we run it. See, as you can see over here, the output has been given. I'm showing you. ये enlarge नहीं होता, ठीक है. Output console में problem होता है enlarging में, ठीक है. So as you can see, oh come on यार. So as you have seen it, ठीक है. As you have seen it, basically क्या होता है कि as you would have seen it कि क्या आउटपुट होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है. I'll be telling you what will be the output. मेरा आईडी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है. So this is the ballpoint pen and see. So the output would have been numpy class numpy dot nd array, ठीक है. हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा माफ करना. So this would have been your output, and as you would have seen in your output nd array. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और कुछ नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि inside the class numpy an object has been created, ठीक है, जिसका नाम है nd array, ठीक है. So this is the thing basically. The next thing which we will be doing is we will be trying to check the version, ठीक है. check the version के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है. to check the version, ठीक है, to check the version, just a minute, to check the version, ठीक है. अगर हमें वर्जन चेक करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट वी विल राइट द कमांड print. you can do it, ठीक है, कर लेना है यार, बहुत इजी है. इसमें मैं क्या ही दिखाऊं. np डॉट np के बाद क्या दूं, एक डॉट दूंगा, और डॉट देने के बाद टू अंडरस्कोर वर्जन and again two underscore. So with this what we can do is we can check the version of our, इसको क्या कहते हैं, numpy, ठीक है. which version of numpy we are using, ठीक है. we can check our version with the help of it, ठीक है. So the next thing which we will be learning is, ठीक है, dimensions of an array, ठीक है. zero d array अगर हम मतलब how to check the dimension of an array. So how we will be doing it, देख लो. देखो, I'll be writing the code for zero d array, ठीक है. थोड़ा माफ करना क्योंकि मेरा IDE में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया है. अब राइटिंग द कोड, आप लोग इसको चला लेना प्लीज, एंड आई कैन अश्योर यू कि ये पक्का से पक्का चल जाएगा, ठीक है. टाइम नहीं लगेगा उतना, आप लोगों का चल ही जाएगा अगर IDE में आप लोगों का भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है. सो जीरो डी एरे में अगर मुझे डायमेंशन चेक करना हो तो मैं क्या करूंगा, पहले तो भैया इंपोर्ट numpy, ये सबको बेसिक लाइन है, पता रहना चाहिए. I'll declare an alias as np, ठीक है. नेक्स्ट arr array, एक array बना रहा हूँ जीरो डी, ठीक है, याद रखना ये वाला बात. array is equal to np dot array, ठीक है, ब्रैकेट में 42, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी प्रिंटिंग
will be printing n time, ठीक है, सॉरी जस्ट सेकंड एक्चुअली हाँ. So next what we will do is we'll be writing arr dot n dim. So इससे क्या होगा यार, इससे होगा तो क्या होगा, इससे बेसिकली जो होगा वो ये है कि by using the dot end time function, or you can say function, we can get the dimension of our array. As you can see, it is a zero dimensional array. The output of this will be nothing but zero. ठीक है, चला के प्लीज देख लेना और तुम लोगों को इसका रिजल्ट मिल जाएगा. सो दिस इज द थिंग बेसिकली. ठीक है, दिस इज हाउ यू चेक द डायमेंशंस इन एन एरे. ठीक है, और इसको 2D एरे में भी कर सकते हो. अभी 2D एरे कैसे बनाते हैं numpy के साथ वो देखेंगे. ठीक है, सो दिल थाम के बैठो, थोड़ा कुर्सी की पेटी बांध लो. कुर्सी की थोड़ी पेटी बांध लो और आगे देखते रहो. ठीक है, सो बेसिकली यार 2D डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशनल एरे को कैसे बनाते हैं. ठीक है, इंपोर्ट वाला लाइन सेम रहेगा, इंपोर्ट np numpy एज np. ठीक है, उसके बाद एक एरे 2D एरे डिक्लेयर करूंगा. ar इज इक्वल टू np डॉट एरे. ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या ब्रैकेट, ये एक 1, 2, 3 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 4, 5, 6, sorry, bracket close and one more bracket which we opened is closed. ठीक है, सो अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा कि प्रिंट ARR, ठीक है, तो फिर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इट विल शो मी द 2 डायमेंशनल एरे. आउटपुट में कुछ इस तरह का रहेगा 1, 2, 3. ठीक है, और नीचे 4, 5, 6. और अगर मैं इसका ये लिख दूं कि arr डॉट enddim, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा 2. ठीक है, बिकॉज वी ट्राई टू फाइंड द डिमेंशन ऑफ आवर एरे एंड इट इज नथिंग बट 2 इन दिस केस. ठीक है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना enddim को पहले ही एरे डिक्लेरेशन टाइम में यूज करके फिक्स कर देंगे कि भाई हम लोग इतना ही, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फिक्स कर देंगे कि हमारा जो डायमेंशन ऑफ द एरे होगा इट विल बी ऑब्वियसली फिक्स्ड टू नथिंग बट 5. ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं. सो लेट्स बिगिन हाउ टू मतलब क्रिएटिंग एन एरे एलिमेंट विथ 5 डायमेंशन. ठीक है, और उसको वेरीफाई भी करेंगे कि सच में ये 5 डायमेंशन का बना या नहीं बना. सो देखते क्या होगा. सो सेम पहले इंपोर्ट numpy as np, and after that we need to specify is equal to np dot array. ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, 1, 2, 3, 4. ठीक है, and here what we will do, we will just give a comma, and after giving the comma what we will write n dimension is equal to 5. ठीक है, सो इसके मदद से हम लोगों ने क्या किया, वी फिक्स्ड द डायमेंशन ऑफ द एरे टू बी अ 5 डायमेंशनल एरे. ठीक है, एंड नाउ इफ वी प्रिंट द एरे, ध्यान से सुनना, नाउ इफ वी प्रिंट द एरे हमारे पास क्या आउटपुट आएगा. देखो तुमने जो इनपुट में दिया, अब टेक 2 minutes. ठीक है, पॉज द वीडियो and please try to figure out and then see the solution. ठीक है, I will request you. तो चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा. ठीक है, आई होप कि तुम लोगों ने ट्राई किया. सो np.array जो हमारे पास इनपुट में एरे हम लोगों ने दिया है, इट इज अ 1 dimensional array and we have fixed the size
और द डायमेंशन ऑफ द एरे टू बी 5 डायमेंशनल। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका आउटपुट ये होना चाहिए, अपने सिस्टम में चला के देख लेना, तुम लोगों को जवाब मिल जाएगा। ये 1, 2, 3, 4। So this will be your output, my dear viewers. This will be your output, ठीक है? So this will be your output, ठीक है? Why so many brackets? Because your input is one dimensional and you have fixed the size to be 5 dimensional, ठीक है? So this will be your output. The next thing which we are going for basically, ठीक है, वो है कि अगर हम लोग अभी इसका क्या करें कि इसका डायमेंशन पता करते हैं यार, वेरीफाई करेंगे इसका डायमेंशन क्या है। ARR डॉट एन डिम। तो फिर इसको भी तुम लोग पहले ट्राई करो, पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, इफ यू गेट द आंसर देन मैच विद द सॉल्यूशन, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रिंट ARR डॉट एन डिम, ठीक है? तो व्हाट शुड बी द आउटपुट? एज यू कैन सी फर्स्ट, as you can see there are actually ये पूरा है, ठीक है? जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हमारे पास अलग अलग बहुत सारे ब्रैकेट्स है। ये क्या डिनोट करते हैं यार? इट इज शोइंग अस, टेलिंग अस कि यार हमारे पास जो ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट टेल अस कितने हमारे पास डायमेंशंस है। आई मिस्ड डायमेंशन, 5 डायमेंशन था, 5 ब्रैकेट्स ओपन होंगे, 5 ब्रैकेट्स क्लोज होंगे, ठीक है? 5, अगर गलती से एक ज्यादा भी हो गया नहीं, ठीक है, चलो। तो आउटपुट क्या होना चाहिए इस चीज का? इस चीज का आउटपुट ये होना चाहिए कि यहां ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है? द आउटपुट ऑफ दिस is actually 1, 1, 1, 4, ठीक है? 1, 1, 1, 4, because one bracket opening, one bracket closing, one bracket opening, one bracket closing, one bracket opening, one bracket closing, ठीक है? 4 ब्रैकेट तो यूं ही हम लोगों ने ओपन एंड क्लोज किया है, which signifies कि उन सारे ब्रैकेट्स का dimension is nothing but 1, and inside the innermost bracket you can see there are 4 elements। इसका मतलब जो innermost bracket है उसका dimension कितना है? It is nothing but 4, ठीक है? उसका मतलब dimension क्या है? It is 4। I'm talking for this part। समझ आया? समझ आ जाना चाहिए, ठीक है? So this is the thing। और कोई भी डाउट हो तो write in the comment section, and in the starting of the slides I have shared with you the email ID of the data readers। You can just log on there and mail your doubts, collectively all the responses will be given to you all, ठीक है? So this is it। next thing which we are going to learn is basically numpy indexing। यार इंडेक्स कैसे करते हैं यार, ये समझ में आना चाहिए। So चलो देखते हैं। So we have done this, we have done this, we have done this, now we are here। So देखते हैं काम कैसे करता है, ठीक है? So let's see। इंडेक्सिंग यार वैसे ही होता है, 0 से स्टार्ट होके n-1 तक हम लोगों का इंडेक्सिंग होता है, where n is the length of the array, it's length, ठीक है? Length of the array, ठीक है? So basically this is the concept of indexing। we have been doing it since the first, मतलब पहले दिन जिस दिन हम लोगों ने स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था उस दिन से हमें पता है ये बात, ठीक है? सो लेट्स चेक हाउ इट वर्क्स, ठीक है? मान लो तुम्हारे पास एक एरे है, उसके पहले numpy लिखा हुआ है, ठीक है? टेक इट, अज्यूम कर लो, मन की आंखों से देखो, दिख जाएगा कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है? ARR 0। अगर मैं ARR 0 की बात कर रहा हूं और मेरे पास 1, 2, 3, 4 वाला एरे है, so what it will print when I write print ARR 0, it will print 1। बेसिक सेंस है। अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूं कि ARR 1 प्लस ARR 2, तो जो आउटपुट आना चाहिए वो आएगा 2 + 3, दैट विल बी नथिंग बट 5, ठीक है? सो ऐसे कुछ काम करता है। अब जो फंडा है ना, फंडा तो हमारा 1D एरे और मतलब 2D एरे और 3D एरे में है, ठीक है? मतलब numpy यूज करके 2D और 3D एरे बनाएंगे और उसका इंडेक्सिंग में थोड़ा बहुत लोचा है, ठीक है? ऑफ प्रिंटिंग एंड ऑल।
सो वो देखेंगे, ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज 1D array, इसमें उतना कुछ खास है नहीं, जस्ट राइट द इंडेक्स नंबर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ एन array एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है, बेसिकली यही तो होता है ना इंडेक्सिंग में। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सी, सो आगे बढ़ेंगे। द थिंग वाज 2D array, ठीक है, एक्सेसिंग 2D array। तो एक्सेसिंग क्या, एक्सेसिंग 2D एरे देखेंगे कि 2D एरे को कैसे इंडेक्स एक्सेस किया जाता है। अगर मान लो कि मेरे पास एक एरे है, अज्यूम कर लेना प्लीज इंपोर्ट numpy एज np लिखा हुआ है, ठीक है, ये अज्यूम कर लेना, उसके बाद जो भी एक्शन होना है वो हो रहा है, ठीक है। सो arr इज इक्वल टू np डॉट अरे, np डॉट अरे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कॉमा 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। So this is our two-dimensional array, all right। And now if someone tell me to print the second element of the first dimension, ठीक है, second element of the first dimension, देखना when I am talking about the first bracket, इसका इस मतलब इसके अंदर we have got two elements as you can see, so the index of this as a whole is 0 and this as a whole is 1। so when we are telling कि print 0 comma 1, that means I am trying to tell you कि ये जो 0 है, पहला जो 0 है, it signifies which one, देखो टू डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ टू वन, मतलब वन डायमेंशनल एरे, ठीक है, टू डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मतलब टू वन डायमेंशनल एरेज। तो when I am signifying 0, I am basically trying to tell you I am talking of the first dimensional array and the next one represents the second dimension of the first dimensional or the second element of the first dimensional array. In this case it is nothing but 2. So my output should be 2. ठीक है, समझ आया? Yes or no? मतलब देख लेना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। So when you write this code in your IDE, you basically get the desired output, ठीक है। एंड अगर हमारे पास अभी अभी जैसा कि मैं कह रहा हूं, सब कुछ भाई ब्रैकेट्स का खेल है, ब्रैकेट्स का खेल है और कुछ नहीं है, इट इज द गेम ऑफ द ब्रैकेट्स, ठीक है। अभी एक असाइनमेंट लिखो, ठीक है, यू जस्ट डू इट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू जस्ट कांटेक्ट अस, ठीक है, यू जस्ट कांटेक्ट अस, यू इफ यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग इसका आउटपुट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो द माय क्वेश्चन इज नंपाई वंपाई छोड़ दो, ठीक है, ये वाला पार्ट जस्ट देख लो, ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन है। एरे इज इक्वल टू, ठीक है, एक एरे क्रिएट कर देते हैं np डॉट एरे, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ठीक है, ब्रैकेट्स का संयोग अगर खो दिए तो फिर पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो कचरे की ढेरी में चला जाएगा। 1, 2, 3, ठीक, कॉमा यहाँ पे, हाँ, कॉमा 4, 5, 6, फिर एक क्लोज, उसके बाद 7, 8, 9, ऑल राइट, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे और एक ओपन होगा, we have got 10, 11, 12 and here we close the brackets, ठीक है, here we are closing the brackets, ठीक है। so you need to give me the output of this print arr 0, 1, 2, 0, 1, 2। so this is your assignment। next video में जब भी कल जो अपलोड होगा उसमें पहले आके हम लोग इसी टॉपिक को मतलब इसी क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू इट एंड टेल मी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट numpy इंडेक्सिंग, ठीक है।
दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट numpy इंडेक्सिंग। सो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक करने में हार्डली 1 सेकंड टाइम लगता है, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। इट्स इनिशिएटिव ऑफ डेटा रीजर्स, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि आप लोग प्लीज ये अपने दोस्तों के साथ मतलब साथ शेयर कीजिए और हमारा रीच बढ़ाइए, एंड मतलब encourage us to bring more and more useful and free lectures and topics for you all, ठीक है। so the next thing is स्लाइसिंग द एरे। देख सकते हो, स्लाइसिंग एन एरे। स्लाइस करना मतलब जैसा कि होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक ब्रेड है, ठीक है। यू हैव गॉट अ ब्रेड, ऑल राइट, नाउ यू नीड टू क्रम्ब दिस ब्रेड, ठीक है। डोंट जज माय ड्राइंग, बेसिकली आई एम गुड एट ड्राइंग, ठीक है, बट आई डोंट हैव अ ड्राइंग पैड राइट नाउ। सो दिस इज नथिंग बट अ ब्रेड एंड वी नीड टू स्लाइस इट, ठीक है। वी नीड टू स्लाइस इट, और इस ब्रेड को तुम अभी एरे के साथ कंपेयर करो, एंड स्लाइसिंग इज अगर तुम मतलब हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करो। इफ यू वांट टू स्लाइस आउट द एलिमेंट्स, ठीक है, यू हैव टू मतलब क्या करना पड़ता है, काट देना पड़ता है। काटते हैं हम लोग ब्रेड को, बीच में से स्लाइस करते हैं, उसको हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर एरे को हम लोग काटे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एलिमेंट्स मिलेंगे उससे, ठीक है। सो बेसिकली जो फॉर्मेट होता है ना स्लाइसिंग का, ऐसा कुछ होता है, देखो। एरे ब्रैकेट में स्टार्ट इंडेक्स, उसके बाद क्या है, उसके बाद एंड इंडेक्स, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है स्टेप, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बेसिकली इफ यू हैव गॉट व्हाट आई विल से, बेसिकली इफ यू हैव गॉट एन एरे, ठीक है, एरे np डॉट एरे, एक्चुअली np डॉट एरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। This is your np dot array. All right, and now you print np dot np नहीं, सॉरी, arr, ठीक है, arr 1:6:2, 1:5:2, ठीक है। तो फिर इसका आउटपुट क्या होगा, टू मतलब एक, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। टू मतलब बेसिकली एक छोड़ के एक। तो फिर मेरे पास जो आउटपुट होगा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 1, it will be 3, it will be I think 5. So my output will be 1, 3, 5, और हमेशा ये स्टेप देने की जरूरत नहीं। इफ यू जस्ट राइट 1:5, इसका मतलब ये है कि we are means just printing all the elements from 1 to 5, और इसका जो स्टेप है इट इज इक्वल टू 1, डिफॉल्ट ये 1 लेता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज स्लाइसिंग। अभी तुम 2D अरे में भी ये ट्राई कर सकते हो। अब 2D अरे में कैसे ट्राई करें, ध्यान से देखना। 2D अरे के केस में क्या होता है, 2D अरे के केस में होता है arr डॉट np डॉट arr, सॉरी, सो np just give me a second here, I'll just have a little bit of water. So np.array dot ar np dot sorry np sorry यार, so np dot array, और array के अंदर क्या कर दो, 2D कुछ डाल दो, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5, 6, ठीक है। ये एक 2D array है, यू कैन सी देयर आर 2 डायमेंशंस, ठीक है। You have got 2D array,
ऑल राइट एंड नाउ यू हैव टू डू स्लाइसिंग फॉर इट। और अगर तुमको बोल दे कोई कि प्रिंट 1 कॉमा 1:4 1:2 1:3 यार 1 या फिर 0 सॉरी इस केस में ठीक है ये कट है ठीक है 0 is to 0:2 ठीक है। इसका मतलब क्या है पहले वाला वन जो है as I said you it will tell you which one dimensional array we are talking about. So when it is 1 we are talking about 4 5 6 the second one dimensional array and which elements we will be slicing out of it 0 index to 2 मतलब 0 से लेके 2 - 1 तक ठीक है 2 जो होता है लास्ट वाला जो होता है मतलब अगर मेरा 0:n है इसका मतलब मैं 0 से n - 1 तक स्लाइस करूंगा ठीक है याद रखना। तो 0:2 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 0:2 - 1 दैट इज 4 and 5 will be my output ठीक है ध्यान रखना दिस इज हाउ टू स्लाइस अ 2D array ठीक है। और भी कुछ कर सकते हो जैसे कि ऐसा कर दो 0:1 कॉमा 0:2 ये क्या करेगा फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे का 1 प्रिंट करेगा और दूसरे डायमेंशनल एरे का 4 5 6 प्रिंट कर देगा ठीक है। दिस इज फॉर द फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे एंड दिस इज फॉर द सेकंड वन डायमेंशनल एरे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन केस ऑफ टू डायमेंशनल एरेज ठीक है ध्यान रखना थोड़ा। So this is the thing. Next thing which we are up to is data types ठीक है। All right so data types we will be studying the next day. The thing which we will be studying now is the difference between copy and view. किसी भी कॉलेज के एग्जाम में चले जाओ वहां पे अगर पाइथन तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा if you have a subject called python तुम्हारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में ये सब्जेक्ट ये मतलब ये क्वेश्चन पक्का से पक्का आएगा लिख के ले लो 100% गारंटी ठीक है। ऐसा ऐसा वाला ऐसे 100% गारंटी ठीक है 100% गारंटी वाला सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड व्यू। तो डिफरेंस क्या है यार देखते हैं देखो बेसिकली यार जब हम लोग कुछ कॉपी करते हैं ना वी डोंट चेंज द ओरिजिनल ठीक है we just create another new array which is exactly the same of the previous one but when you view something तुम क्या करते हो उसको देखते हो इसका मतलब तुम जो देख रहे हो it is exactly a copy of what the original one is ठीक है। मेरा मतलब ये है कि मान लो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे करता हूं ठीक है यहां पे लिखो कॉपी यहां पे लिखो व्यू। तो इसका मतलब क्या है कॉपी के केस में क्या होता है न्यू एरे क्रिएट होता है न्यू एरे ठीक है न्यू एरे और इस केस में नो न्यू एरे याद रखना। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो है कि इसका जो डेटा होता है ना डेटा इट इज ओन्ड बाय इट क्या ओन करता है डेटा को ओन करता है बट दिस डजंट हैव ओनरशिप ऑफ द डेटा क्यों क्योंकि भाई तू तो देख रहा है ना तुम सड़क के किनारे से जा रहे हो एक मर्सिडीज सी क्लास की गाड़ी चली गई तुम देख रहे हो बट व्हेन यू कॉपी दैट पर्सन इसका मतलब तुमने भी एक सेम मॉडल की गाड़ी ले ली है भाई ठीक है। अब तो मौज ही मौज ठीक है। तो अब तुम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करो तुम उसको तोड़ दो तुम उसको फोड़ दो तुम जो मन वो करो यार क्योंकि नाउ यू हैव गॉट योर ओन प्रॉपर्टी बट इन केस ऑफ जस्ट सीइंग वो तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है अभी भी यार तुम्हारे खुद की अभी थोड़ी हुई है तो यू आर जस्ट व्यूइंग इट ये दिस इज द डिफरेंस ठीक है। नाउ और एक चीज याद रखना
एक होता है हमारा फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, इसको अपने कंप्यूटर में रन करना फिर देखना। जैसे कि एक्स क्या करेंगे, पहले तो इंपोर्ट ब्ला 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 लिख लेना अपने से, ठीक है, बहुत टफ काम है, मेरे को नहीं आता। तो इंपोर्ट ब्ला 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 एक्स इज इक्वल टू ARR dot copy bracket open close. Now ARR 0 एरे मान के चलो कि पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया है क्या 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 एरे मतलब इंडेक्स 0 पे मैं क्या डाल रहा हूं 42 डाल रहा हूं, 42 डाल रहा हूं, ठीक है। क्या करता हूं मैं, पहले तो मैं एरे को प्रिंट कराता हूं ताकि मेरे को डिफरेंस समझ में आए, उसके बाद मैं प्रिंट किसको कराऊंगा, मैं उसके बाद प्रिंट कराऊंगा एक्स को, ठीक है, दिस एक्सेल। सो व्हेन यू जस्ट सी द आउटपुट यू कैन सी दैट पहले वाले में मेरा 1 2 3 4 आया, पर दूसरे वाले केस में जब मैं एक्स प्रिंट करा रहा हूं तो फिर मेरा आया है 4 2 3 4, ठीक है। सो रिमेंबर this is the original one and this is the copy one, but in the copy one you have modified something, मतलब पहले वाले में there is no change inflicted in the original case, ठीक है। current array मतलब जो पहले array था before changing the index मतलब zeroth index वो प्रिंट हो चुका है when I am printing that original array। इसका मतलब क्या, कोई भी चेंज इंपैक्ट नहीं करता है ओरिजिनल डेटा सेट को, ठीक है। And if we do view instead of this copy, just write view, तो क्या देखोगे यहाँ पे, अगर मैं व्यू डाल दूं इस कॉपी की जगह पे तो फिर आउटपुट में क्या चेंज मिलेगा, आउटपुट में क्या चेंज मिलेगा, आउटपुट में मुझे ये चेंज मिलेगा कि मेरा आउटपुट ये हो जाएगा, सॉरी 1 तो नहीं आएगा, 42 2 3 4 and for x also 42 2 3 4, इसका मतलब क्या, any change made to the मतलब view viewed array will be inflicted in the main array मतलब original array as well, ठीक है। so this is the thing and there is another test actually between copy and view। वो क्या है कि वो तो ये है कि x is equal to array dot copy, ठीक है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग यार, आई एम रियली सॉरी, array dot copy and here x is equal to array y is equal to कर देते हैं, y is equal to array dot view, ठीक है। and now print x comma base and print y comma base, ब्रैकेट ओपन क्लोज ऊपर भी होगा, ठीक है। so when you use this attribute base what it returns is, याद रखना when we are copying something we are actually creating another array, ठीक है, and means एक नया array बन जाता है and the new copied array will have its own ownership of data, ठीक है। तो whenever we use the base attribute with the copied array it gives none as output, none, ठीक है। and whenever we use the base attribute with a viewed array it gives us output as the array it is, ठीक है। और मान के चलते कि हमारा array 1 2 3 4, तो when the output of this whole code will be one, first it will be none, second it will be 1 2 3 4, this signifies that in copy क्या होता है कि एट्रीब्यूट का खुद का कॉपी बनता है, ठीक है, एट्रीब्यूट का खुद का क्या बनता है, मतलब कॉपी करेंगे ना किसी ओरिजिनल एरे को तो क्या होगा कि वी विल बी गेटिंग अ न्यूली क्रिएटेड एरे, alright, which will be having its own ownership, that's why when we use the base attribute the output will be none and vice versa in the case of view, ठीक है। so this is the whole concept of difference between copy and view, ठीक है, ये ध्यान रखना, this is very 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 useful, ठीक है। so guys शायद से 40-45 मिनट का ये सेशन हो चुका है,
ठीक है। सो जस्ट इमेजिन यार, इतने से टाइम में मैं तुम लोगों को, हम लोग डेटा रीडर्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टॉपिक्स की क्लैरिटी दे सकते हैं, तो समझो अगर तुम हम लोगों का पेड कोर्स लेते हो तो हाउ मच हेल्पफुल इट विल बी। ठीक है, दो न्यू कोर्सेज आने वाले हैं, ठीक है, दो न्यू कोर्सेज आने वाले हैं, और ये दो न्यू कोर्सेज में ये है डीबीएमएस है, ठीक है। when you take this DBMS course you will be learning each and every aspect of SQL, ठीक है। Oracle यूज करेंगे हम लोग, will be using Oracle, Oracle यूज करके हम लोग क्या सीखेंगे, SQL सीखेंगे, will be learning in depth about DBMS, ठीक है। और when we talk about यार सबसे important subject for a computer science engineering student is data structure and algorithm. So this subject will be covering with मतलब ये स्पेशल क्लासेस है जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स में सेपरेटली मतलब की करवाए जाते हैं, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर एज यू नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत टफ लगता है लोगों को, बट इफ यू बी एन अर्ली बर्ड, ठीक है, यू टेक आवर सब्सक्रिप्शन यार, मतलब हार देंगे, दोनों हम लोग साथ में मेहनत करेंगे और डेटा स्ट्रक्चर को अपना दोस्त बनाएंगे, ठीक है। सो व्हाट आर अदर बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स, यू विल बी प्रोवाइडेड विद पीडीएफ्स, यू विल बी प्रोवाइडेड विद बुक्स, ठीक है। We'll be having the best books available with us. If you want to take the books, it will be delivered to you at your doorstep, so do not worry about that. If you want to take our courses, just go to the link of registration which is given below, and it will be very मतलब बहुत ही हेल्पफुल होगा तुम लोगों के लिए आगे मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। और जिसको मतलब सब सीरियस मतलब सीरियस प्रिपरेशन करना है, ठीक है, फॉर प्लेसमेंट्स, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू ऑल टू गो विद आवर कोर्सेज, ठीक है। एक दो डेमो क्लासेस दिए जाएंगे पहले, and after that if you like them really, then only you take our courses. All right guys, I hope ये session तुम लोगों को पसंद आया होगा, and I would request you to like, share and subscribe our channel, and please forward it to your friends, and in the comment section write whether you have liked the video or not. Thank you and have a good night, ठीक है। कल का सेशन इसी वक्त पे होगा, ठीक है। एंड दैट्स इट यार, थैंक यू वेरी मच। 52 मिनट्स का सेशन था, एंड कल हम लोग और नए टॉपिक्स लेके आएंगे अबाउट numpy, एंड सी यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।